میں جانتا ہوں شیخ آصف صاحب گنڈا گردی کی سیاست کی وجہ سے آپ سے لوگ ڈرتے ہیں، اور جناب اسماعیل صاحب مولانا سے اگر محبت کرتے ہیں اس کے تقوی کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے برابری کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ خون کو خون لکھتے ہیں، پانی ہم نہیں لکھتے، محلوں میں جو ناچتی ہے اسے رانی ہم نہیں لکھتے۔ کاٹ دے کوئی میری گردن یا چھین لے زباں میری، قاتل کو لکھتے ہیں قاتل، مسیحا ہم نہیں لکھتے۔ علم و عرفان کے شہر، دین و ایمان کے شہر، شرفا و رئیسوں کے شہر، ہندوستان میں اقلیتوں کا ایک مثالی شہر، شہر مالیگاؤں کے کارپوریشن کے انتخاب کے تعلق سے آج کے اس انقلابی جلسے میں موجود میر محفل، مفکر اسلام، آبرو ملت جناب مولانا و مفتی اسماعیل قاسمی صاحب دامت برکاتہم، MIM کی مرکزی قیادت کی جانب سے الیکشن کے نگراں اور سرپرست جناب جعفر حسین معراج صاحب، معزز رکن اسمبلی یاقوت پورہ حیدرآباد، آپ سبوں کے محبوب نظر اور امیر شہر جناب بھائی عبد المالک صاحب، امیدوار اور دیگر سبھی امیدوار احباب، یہاں پر موجود معزز علماء کرام، غیرت مند نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردے سے سماعت کر رہی نیک ترین بہنوں اور بیٹیوں اور میڈیا کے اچھے ساتھیوں، جیسا کہ جناب معراج صاحب نے کہا ہے کہ شام کے جلسے کا آخری جلسہ ہے اور اس وقت آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میرے تعلق سے آپ کو علم ہوگا کہ میں وطن عزیز کے استعمال اور مشرقی حصے سے آیا ہوں جو نیپال اور بنگلہ دیش کی سرحدوں سے وابستہ ہے۔ میں آپ کے پاس اس وقت یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں اور گزارش سے زیادہ مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ مبارکباد اس لیے دینے آیا ہوں کہ پورے ہندوستان میں یہ فضیلت آپ کے شہر کو ہے کہ موجودہ وقت دین اور سیاست کی دوری کو آپ نے ختم کیا ہے اور علماء کے اور ملت کے سر کا ایک تاج جناب مفتی اسماعیل صاحب کو آپ نے سیاست کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ یہ ناتج آج MLA بنا ہے تو اب کی بار کے الیکشن کے جیت میں حضرت مولانا موصوف کا بڑا اہم رول رہا ہے، جہاں سیمانچل سے 5 لوگ MIM کے جیت کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جلسہ انتخاب کے تعلق سے ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ الیکشن کے زمانے میں ووٹر کی حیثیت منصف کی ہوتی ہے۔ مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی بات ان کے دل میں ہوتی ہے، چاہے تو رہا کر دیا جاؤں گا ور نہیں تو قید کر دیا جاؤں گا۔ لیکن جو عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا منصف ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کی پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے کہ میری ذرا سی غلطی سے ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم رہا ہو جائے، اور میری ذرا سی غلطی سے کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی معصوم کو سزا مل جائے۔ اس وقت یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر ایک جملہ لوگ بولتے ہیں کہ جیسن راجا ویسن پرجا، یہ جملہ ابھی بھی کچھ لوگ بولتے ہیں۔ آپ کے شہر میں بولتے ہیں کیا؟ بولتے ہیں نا؟ لیکن میں آج کہنے کے لیے آیا ہوں، گرچہ ہمارے اہل علم جانتے ہیں یہ جملہ اس زمانے کا تھا جب راجا کے گھر میں راجا جنم لیتا تھا، ملکہ کے آغوش میں بادشاہ جنم لیتا تھا۔ اب جمہوریت میں راجا کے رانی کے آغوش سے کوئی راجا جنم نہیں لیتا، کالا کلوٹا ہو تب بھی ملکہ کا بیٹا شہزادہ اور بادشاہ بنے۔ اب ایسا نہیں ہے،
अब जनता जिसे चुनेगी वह आपका बादशाह, वह आपका फरमारवा, वह आपका हाकिम बनेगा। इसलिए जैसन राजा वैसन प्रजा नहीं, बल्कि जैसन प्रजा वैसन राजा होगा। आप अच्छे प्रजा हैं, आपने मुफ्ती इस्माइल साहब जैसे लोगों को चुना है, ये काबिल फख्र बात है। और मुझे उम्मीद है, मैंने जो कुछ अब्दुल मालिक साहब के बारे में सुना है और उस जवासाल कायद ने अपने जिन नेक जज्बात का और मुस्तकबिल के जिन मंसूबों का इजहार किया है, यकीनन है क़यादत की सिफात उनके दरमियान में, उनके अंदर में अल्लाह तबारक तआला ने बदर्ज अतम रख दिया है। मेरे भाइयों, आप समझ रहे हैं कि वोट क्या है? जमहूरियत में वोट नहीं है, वोट एक हथियार है। आपकी इज्जत, आपके आबरू, आपके मालो दौलत, आपकी शरीयत का वोट नहीं है। ये वोट अमानत है अल्लाह की तरफ से। ये अमानत अहले अमानत के हवाले किया जाना आप पर लाजिम है। वोट कोई ताश के पत्तों का खेल नहीं है, वोट मोबाइल के बटन पे कोई खेलने वाला गेम नहीं है, बल्कि वोट आपके मुस्तकबिल को तय करेगा। इस मुल्क में इज्जत के साथ रहेंगे, इस शहर में इज्जत के साथ रहेंगे, हमारी नस्लों की भलाई होगी, हमारे उलमा के आबरू की हिफाजत होगी, हमारे मस्जिदों की हिफाजत होगी, हमारे शरीयत की हिफाजत होगी। इस मुल्क में आज उसके लिए जरूरी है कि हम मुस्बत कदरों की आबियारी करें और अच्छी सियासत को परवान चढ़ाने का काम करें। मैं आपको बता देता हूं सियासत क्या चीज है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दावत दी, नबूवत से कबल 40 साल तौहीद की बरमला दावत न थी, लेकिन किरदार फाजिला की दावत थी। 13 साल तक आपने दावत बामुशक्कत दी, लेकिन मक्के में मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा था। और जब नबी रहमत मदीना चले गए तो 2 साल के अंदर में जंग बदर को फतेह किया और 8 साल के अंदर में फतेह मक्का किया। फर्क क्या था? फर्क यह था कि मक्के में सिर्फ दावत थी, दावत को ताकत हासिल नहीं थी। जब मदीना पहुंच गए तो दावत भी थी, जमात भी थी, ताकत भी थी। इसलिए हक को नाफिज करने के लिए ताकत का हुसूल लाजिम है। इसलिए सही तौर पर समाज अच्छा बने, उसके लिए अच्छे लोगों को चुनना हम पर लाजिम है। इसीलिए आप पर यह जिम्मेदारी है कि आप किसको चुनेंगे। आप अपने बेटा और बेटी का रिश्ता करते हैं, कितना तहकीक करते हैं, लड़का कैसा है, आमदनी कैसी है, खानदान के लोग कैसे हैं, माँ बाप का तौर तरीका क्या है, क्यों फिक्रमंद रहते हैं? इसलिए कि अपनी लख्त जिगर से आप मोहब्बत करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी वीरान हो। आप बेटे का रिश्ता करते हैं, बहू तलाश करते हैं, किस किरदार की है, खानदान के लोग कैसे हैं। आप फिक्रमंद होते हैं कि मेरे खानदान का वकार मजरूह नहीं हो। मेरे भाइयों, याद रखना, एक दूल्हा आवारा होगा, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी, एक झगड़ाली बहू आएगी, एक खानदान को बर्बाद कर सकती है, लेकिन एक नेता नाकारा और आवारा हो तो पूरे कौम को तबाह व बर्बाद कर सकता है। इसलिए बेटी के बारे में अगर एक बार सोचते हो तो नेता के बारे में 1000 बार सोचने की जरूरत है। और इसके बारे में खुदा के यहाँ पूछगछ होगी। अगर आपने नेक लोगों को चुना, उसने नेक अमल किया, उसने अदल कायम किया, उसने समाजी खिदमत के जज्बे से शहर को अच्छा बनाया, अमीर गरीब सबके साथ, हिंदू मुस्लिम सबके साथ अच्छा सलूक किया, तो यकीनन है कि आपको अजर अजीम मिलेगा। अगर आपने किसी बातिल को चुना, किसी गलत को चुना, किसी गुंडे को चुना, किसी मवाली को चुना, आपकी नस्लें नशे में बर्बाद होगी, आपके समाज में तबाही आएगी, दलाली होगी। तो ऐसे लोगों के भी जिम्मेदार आप होंगे। इस एतबार से सोचिए, आप इनके किरदार का मुताला कीजिए, आसिफ सैफ को खड़ा कीजिए और उनके बारे में मुताला कीजिए। ये शख्स क्या है, ये शख्स कौन है, इसके खानदान ने क्या किया है, इसके करतूत कैसे हैं। और अब्दुल मालिक को रखे, खुदा की कसम मैं कहता हूं कि अल्लाह तबारक तआला आपके सीने को खोल देगा और आप हक का फैसला करने पर खुद तैयार हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे मौके से अब्दुल मालिक के किरदार के सामने में पासंग के वजन भी शेख आसिफ नहीं छेड़ सकता है। इसलिए आपको अपना वोट इसको देना चाहिए। मैं आपको एक बात और भी कहता हूं, हजरत मौलाना मोहतरम यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने इल्म के तत्हीर के लिए कहता हूं, अपने अफकार की तत्हीर के लिए कहता हूं कि बुखारी शरीफ की एक मशहूर हदीस हमने एक आलिम से सुनी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह कयामत कब आएगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अमानतों में खयानत होने लगे। लोगों ने फिर से पूछा, या रसूलुल्लाह अमानतों में खयानत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नाअहल लोगों को अपना अमीर बना दो,
तो ये अमानत में खयानत है, ये क़यामत की अलामत है। ये मफहूम हमको बताता है कि हम अगर नाअहल लोगों को चुनते हैं, क़यामत तबाही और बर्बादी का नाम है। बस पर बैठे हो, सब लोग तस्वीर लेकर बैठ जाओ, बावजू बैठ जाओ, अगर बस का ड्राइवर नशे में होगा तो बस को चकनाचूर कर देगा। आप समाज का नेता चुनने जा रहे हो, अगर समाज में भी को अगर बर्बादी से बचाना है तो नेक लोगों को चुनो, वरना बुरे लोगों को चुनोगे तो समाज को तबाह बर्बाद कर देगा। इससे उस तबाही और बर्बादी से बचानी है। मैं पूछना चाहता हूं आसिफ शेख को, आपने इस्लाम के नाम पर जमात बनाई है? अरे वाकईतन अगर दीन से मोहब्बत है तो मैं समझता हूं आप भी तौबा करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आ जाओ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस्लाम की जो लड़ाई लड़ी है, मजहब के बका की जो लड़ाई लड़ी है, शरीयत के तहफ्फुज़ की लड़ाई लड़ी है, मिल्लत के मसाइल की लड़ाई लड़ी है। मालीगांव में बम धमाका हुआ था, वो चीख तुम पैदा न कर सके जिस चीख को आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैदा करने का काम किया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में तुम्हारी जबान न खुल सकी थी, जबान अगर किसी खुली, बाबरी मस्जिद पर जबान किसी की खुली, तलाक के मसले पर किसी की जबान खुली, एसआईआर के मसले में अगर जाकर चीफ इलेक्शन कमीशन से कोई मिलता है तो तुम जाकर मिलकर अपनी बात नहीं रख सकते। अगर वहां कोई बात रखता है तो मर्द आहन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रखता है। ए मालीगांव के लोगों, अपना अमीर किसको चुनोगे? गलियों के इन मारूफ लोगों को? अरे जितने लोग आसिफ को जानते हैं उतने लोग अब्दुल मालिक साहब को जानते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान नहीं, बर्रे सगीर नहीं, बल्कि आलमी सतह पर हमारा जो सियासी अमीर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को दुनिया जानती है। तो अपने पार्टी की निस्बत, अपने वोट की निस्बत हम एक अजीम क़यादत से जोड़ेंगे जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। जो गलियों में सियासत करता है वो हमारा लीडर नहीं बन सकता। घर में बैठकर कोई खुद साख्ता पार्टी बना ले और ये समझने लगे। मैं तमसील लेता हूं कि सड़क पर गोबर भी हो और सड़क पर टोपी भी गिरी हुई हो, तो जब आदमी रवानी में चलता है तो गोबर पर भी पांव नहीं डालता और टोपी पर भी पांव नहीं डालता, ऐसा करता है ना? तो अगर गोबर भी यही समझे कि टोपी ही की तरह हम भी अजमत वाले हो गए हैं तो यह बड़ी गलत फहमी होगी। मैं जानता हूं शेख आसिफ साहब, गुंडागर्दी की सियासत की वजह से आपसे लोग डरते हैं और जनाब इस्माइल साहब मौलाना से अगर मोहब्बत करते हैं उसके तकवा की वजह से उससे मोहब्बत करते हैं। आप उनके बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर सकते, आप उनके बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हम आप तमाम तर लोगों से कहना चाहते हैं कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुख्तलिफ जिले में इलेक्शन लड़ रही है। मैं 3 दिन अभी मुंबई में बिता के आ रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि बम्बो के नौजवानों में जो गैरत हमने देखी है, एमआईएम का जो पर्चा हमने चर्चा देखा है, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन नताइज वहां से आएंगे। बिहार से भी जो ठंडी हवा आई है उसने भी आपके दिल को इत्मीनान पहुंचाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं उन तमाम तरह इलेक्शन में मालीगांव की तरफ पूरी मिल्लत की नजर उठी हुई है, क्योंकि यहाँ आपकी आबादी काबिल कद्र है। आप सिर्फ कॉरपोरेटर नहीं चुनेंगे बल्कि आपके अंदर में यह ताकत है कि आप यहाँ का जो मेयर है मेयर चुन सकते हैं, और अब्दुल मालिक भाई से ज्यादा बेहतर मेयर मैं समझता हूं इस वक्त कोई दूसरा बनने के लायक नहीं है। इसलिए आपको अपनी एक एक ताकत लगा देनी है पूरी रमा। आपको डराया जाता है कि एसआईआर के बारे में हम ही कर सकते हैं, कितने बड़े पहलवान हो। गली के कुत्तों से डर जाने वाले इस देश के जालिमों के सामने में तू आंख में आंख डालकर बात भी कर सकता है क्या? मिल्लत पर मुसीबत आए, कौम पर मुसीबत आए, अगर सीने को चौड़ा करके कोई बात कर सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बात कर सकता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमको लटकाने का जो इरादा करेंगे खुद वो लटक जाए, हमको लटका नहीं पाएंगे। ये जमीन जितने किसी के बाप की है उतनी मेरे बाप की भी है। हम किराएदार नहीं है, कोई हमें उखाड़ कर फेंक देगा। जो जिंदा है इंशाअल्लाह उसका नाम यहाँ के वोटर रजिस्टर में होगा, जो मर गया है उसका नाम कटेगा। किसी के बाप की मजाल नहीं होगी कि हमारे जायज शहरियों का नाम काट कर दिखा दे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे बिहार में एसआईआर का मामला आया, हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में इलेक्शन कमिश्नर से मिले और बैरिस्टर साहब ने एक एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी के तमाम तर वोटर लिस्ट को निकालकर जो काम हमारे यहाँ किया है उसकी नजीर पूरे बिहार में नहीं मिलती। हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि ये इलेक्शन का जो जमाना है ये सिर्फ आप मालीगांव के लिए नहीं है बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क को सामने में रख के कीजिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहि रहमा के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा सियासतदान
जो मुसलमानों के मसाइल पर, मजलूमों के मसाइल पर, कौमी मसाइल पर खोल कर बोलता है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन के अलावा दूसरा कोई और नहीं है। आज मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कीमत गिर रही है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं। आपके यहां भी बिजली के नर्क को बढ़ाकर टोरंटो के जरिए से आपके कारोबार को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन एक जुनूनी जमात है फिस्ताई ताकतों की, फिरका परस्तों की, वो कहता कुछ भी हो जाए हमारे लिए मोदी है। ए मेरे मिल्लत के फर्जंदो, एक जालिम को आदमी अपनी जात बिरादरी के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर अपना लीडर मान रहा है। खुदा के वास्ते इस मजलूम आबादी का एक बड़ा वकील है, उसको तुम अगर इज्जत नहीं दोगे तो उसे इज्जत कहां मिलेगी। मैं कहता हूं बड़े फख्र के साथ कि बचपन में अगर तुमने हैदराबाद का नाम सुना होगा तो चार मीनार का तस्वर था, लेकिन जब आज हैदराबाद का नाम सुनते हो तो चार मीनार की कदामत और तारीखी हैसियत अपनी जगह पर है। हैदराबाद का नाम लब पर आता है तो हमें क़यादत के और अदल इंसाफ के दो मीनारे नजर आते हैं। एक का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और दूसरे का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। अगर आप यहाँ वोट डालते हैं तो अपनी क़यादत को जन्म दे रहे हैं। क़यादत क्या है, क्या है क़यादत, समझने की जरूरत है। आज पार्लियामेंट में वंदे मातरम हो, तलाक का मसला हो, बाबरी मस्जिद के मसाइल हो, नौजवानों की गिरफ्तारी हो, मुसलमानों के साथ जुल्म हो, कोई नहीं बोलता। मेरे इलाके से, मौलाना मुझे माफ करें, मैं 2014 में पार्लियामेंट का उम्मीदवार था और जब बीजेपी के हालात हमने देखे, हमने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और मौलाना असराउल हक कासमी साहब नवर अल्लाह मरकदो के लिए हमने आसान कर दिया इलेक्शन को। आप जानते हैं तलाक के बिल की जब पेशी हुई, कांग्रेस के लोगों ने बोलने की इजाजत नहीं दी। मौलाना की डबडबाई हुई आंखों के साथ आज भी बयान मौजूद है। मौलाना ने कहा मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मेरे भाई, क़यादत इसी को कहते हैं कि पार्टी की टिकट की बुनियाद पर वोट मुसलमानों ने दिया और शरीयत पर हमला हुआ, मौलाना को बोलने नहीं दिया। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन बोलना चाहा तो किसी के बाप की मजाल उसे रोकने की नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं? आप दोस्तों की गुलामी चाहते हैं? एक आखिरी जुमला क़यादत के ताल्लुक से कह के जाऊंगा कि देखो, दो मिसालें देता हूं। एक औरत 12 बरस तक अगर उनके बच्चे न हो तो 12 बरस के बाद बच्चा हो न हो तो वो अड़ोसन पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है जब तक बाज है। लेकिन कुदरत अगर 12 बरस के बाद एक औलाद दे दे तो फिर अपने औलाद की पेशानी चूमती है। ए हिंदी मुसलमानों, दलितों, बरसों के बाद एक लीडर आया है, उस लीडर की पेशानी को चूमने का काम करो। एक आदमी 90 किलो 1 क्विंटल के वजन का हो, अगर उसके दानू कट जाए 20 किलो के, वो आदमी लंगड़ा होगा लेकिन जिंदा होगा। बाजू कट जाए वो लूला होगा लेकिन बहुत मौजूद होगा। लेकिन अगर 4 किलो 3 किलो के वजन की गर्दन कट जाएगी तो फिर वो आदमी आदमी नहीं, वो लाश है। यकीन जानो, जिस जिस्म में कोई सर नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। क्या अपने गर्दनों को कटवाने के लिए तैयार हो? अगर गर्दनों को कटवाने के लिए तैयार नहीं हो तो अब्दुल मालिक को जिताना और कॉर्पोरेशन के जंग को जीतना ही आप पर वाजिब नहीं है, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू को मजबूत करने के लिए अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देकर तमाम तर कॉर्पोरेटर को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखना मेरी आखिरी बात को, मामू, खालू, फूफा, अमीर हो, वजीर हो, दौलतमंद हो, मर जाए बच्चा यतीम नहीं होता। बाप लकवे के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप दम तोड़ देता है बच्चा यतीम हो जाता है। बाप के मरने से जिस तरह बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। अपने कौम को यतीमी से निकालना चाहते हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर एक एक वोट दीजिए। इनकलाब तैयार है आप? मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अपने हाथों को लहरा कर कह दीजिए इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अब्दुल मालिक, पतंग का निशान, माली गांव के जवान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।